नमस्कार, हमारी खास बुलेटिन सदन दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। आइए अगले आधे घंटे में देखते हैं दोनों सदनों में आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में लगातार दूसरे दिन विपक्ष की ओर से गतिरोध। एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल का कार्य बाधित। राहुल गांधी पर संसद भवन परिसर में बीजेपी की महिला सांसद के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप। एस फांगनॉन कोन्याक ने उच्च सदन में उठाया मामला। सत्ता पक्ष ने की माफी की मांग, विपक्षी दलों ने जताई आपत्ति। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज। उपसभापति के फैसले की महासचिव ने दी जानकारी। विपक्ष की सूचना त्रुटिपूर्ण, उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में आज भी विपक्ष का अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद घनश्याम तिवारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद सभापति ने सदन के पटल पर आवश्यक कागजात रखवाए। इसमें विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र, संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन और मंत्री के वक्तव्य शामिल थे। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। With your permission, sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 within brackets 1 in today's list of business. Thank you. Dr. Jitendra Singh. I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 bracket 2 in today's revised list of business. Thank you. श्री प्रताप राव जाधव। माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित प्रलेख सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jayant Chaudhary, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned at serial number 2, class 4 of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2 within brackets 5 in the revised list of business for today. Dr. Chandrasekhar Pemasani. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. Shri Suresh Gopi. Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. Shri Sanjay Seth. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of English and Hindi, each of the papers mentioned against my name, serial number 8, in today's revised list of business. Shri Sukanta Majumdar. Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 9 of item number 2 of today's revised list of business. Shri Tokan Sahu. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। श्री राजभूषण चौधरी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 11 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। श्री पवित्र मार्गेटा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के अनुसार क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के सन्मुख उल्लिखित कागजातों को सदन के पटल पर रखता हूं। Of the Department Related Parliamentary Studying Committee on Transport,
Tourism and Culture, Shri Sanjay Kumar Jha. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to present a copy of each in English and Hindi of the 370, 371, 372, 373 and 374 reports of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Statement by Minister Shri Sanjay Seth. Sir, with your kind permission, rise to lay a statement of the table of the House regarding the withdrawal of advance from Contingency Fund of India's accordance with the para 5 of Appendix 1 of Delegation of Financial Power Rules 2024. इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को सूचित किया कि उन्हें नियम 267 के तहत 4 नोटिस मिले हैं। नोटिस निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इसीलिए उन्हें अस्वीकार किया जाता है। I have received 4 notices under Rule 267. On numerous occasions, I have reflected. सब्जेक्ट क्या है सर? सब्जेक्ट जयराम जी इधर आ जाओ, इधर आकर बैठ जाओ। We want to know sir. Subject. Give me some time to speak the subject. I think I am too slow for him. Difficult for me to keep pace. Notice of Shri Sanjay Singh, Shri Randeep Singh Surjewala. Yes sir. He is present sir. Allow. And Dr. John Britas. They demand a discussion on a statement made by the Union Home Minister. Shri Ramji Lal Suman demands discussion on protest by farmers. Honorable members would recall, and looking into the background for several decades, a discussion under Rule 267, and I reiterate, has been consensual when both the ruling and the opposition have agreed. And in asserting so, I take recourse to what has happened earlier. I had indicated that in last 3 decades, this discussion has not been in double digit. इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने अवरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे। स्थिति को देखते हुए सभापति ने कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। Nothing will go on record. Nothing will go on record. We can't allow the country to be plunged in anarchy. Honorable members, we cannot allow the country to be plunged in anarchy. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, राज्यसभा महासचिव ने सभापति के खिलाफ 10 दिसंबर को विपक्ष की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को लेकर उपसभापति की रूलिंग की जानकारी दी। इसमें कहा गया कि ये सूचना गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण और मौजूदा उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए हड़बड़ी और जल्दबाजी में तैयार की गई है। इसका उद्देश्य संवैधानिक संस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए है, इसीलिए इसे खारिज किया जाता है। Message to the House, Secretary General. Message to the House. Sir, with your kind permission, I rise to report that a detailed ruling has been given by the Honorable Deputy Chairman on the communication received on 10th of December 2024 under Article 67B of the Constitution, giving notice of intention of a no confidence motion against the Vice President. I lay a copy of the ruling both in English and Hindi on the table of the House.
इसके बाद बीजेपी सदस्य एस फागनॉन कोन्याक ने संसद भवन परिसर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से किए गए व्यवहार को आपत्तिजनक बताते हुए आसन से संरक्षण मांगा। Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then, it would be very unbecoming. So I did not do that. But then, what he did, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले को गंभीर बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ उठाना लग जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा सर। इसलिए राहुल गांधी जी के व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ संसद से नहीं, पूरा देश से माफी मांगना चाहिए सर। I appeal to everyone, we must engage in dialogue, we must ensure democracy prospers. Leader of the House. सभापति जी, जिस तरीके से संसद में संविधान पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसके कारण ये बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। और आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद
met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member parliament. I am looking into it. जी, सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है, उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। वहीं विपक्ष ने इसका विरोध किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तकरार के चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बुलेटिन में बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा की कार्यवाही लगातार दूसरे दिन भी बाधित रही। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदन के दिवंगत पूर्व सदस्य को श्रद्धांजलि दी गई। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने पूर्व साथी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री EVKS एलानगोवन तमिलनाडु के तत्कालीन गोबीचेट्टीपालयम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री एलानगोवन ने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री तथा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले वे तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री EVKS एलानगोवन का निधन 14 दिसंबर 2024 को 75 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। हम अपने पूर्व साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीच आ गए। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभासदों, माननीय सभापति जी, House adjourned till tomorrow 11 AM। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।